on the computer. ठीक है. Now aldol condensation will occur on those ketones in aldehyde where I have a sp3 hybridized alpha carbon which is adjacent to C double bond. अगर मेरे पास कोई भी sp3 hybridized carbon है, right, which is adjacent to C double bond, it means that this carbon can form enol, right? तो जहां पे इनॉल फॉर्मेशन पॉसिबल है ना, वो वाले मॉलिक्यूल्स तुम्हारा क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं. गॉट इट. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन? सबसे पहले ना वी विल टेक सेल्फ एल्डोल. नाउ इन सेल्फ एल्डोल रिएक्शन व्हाट आई एम डूइंग, आई विल टेक acetaldehyde and I'll just put that thing into 10% aqueous NaOH, right? Understood. नाउ लिसन गाइस, इसमें ना सबसे पहले क्या क्या रिएक्शन हो सकती है उसके बारे में सोचो. ठीक है. तो मैकेनिज्म. Now understand one thing, as a student when I'm seeing this particular reaction I come to know that I do have a nucleophile which is OH minus, right? Now I know that if I have a nucleophile, then what nucleophile can do, it can undergo nucleophilic addition reaction, right, on C delta positive charge and pi bond will shift. The problem is all the nucleophilic addition reactions are highly reversible in nature. In this reaction, obviously, I am getting gem diol, and gem diol formation tendency is very less, right? Right? Yeah. So the tendency of gem diol formation is very less. So I'll say that this equilibrium is highly reversible. So OH minus attack करेगा, OH minus leave करेगा, और ये चलता रहेगा. That is one of the thought process which I'll get. Correct? Understood. Then another thing I come to know that, okay, I'm using base. Now what extra base can do, I'll have the nucleophilic addition reaction. Now understand this step 1 of aldol, which is RDS. It is enolization. What will happen? The base will extract the acidic hydrogen from this sp3 hybridized carbon. This hydrogen is acidic. So this acidic hydrogen will be taken by this OH minus. I'll be getting water plus C minus adjacent to C double bond OH. Understood? Now this mechanism is RDS, rate determining step. So let's say that RDS is nothing but formation of enol, right? So whenever enol formation takes place and that too in equilibrium, make sure that you have to form the most stable enol content over there. Understood? तो हम ना हमेशा इनोलेट का स्टेबिलिटी चेक करेंगे. The stable enol will be formed over here. Now just tell me, if this is RDS, what is the rate of the reaction? Rate constant into concentration of CH3CHO for a single step reaction. Order is equal to molecularity. So what is the molecularity of this reaction right now? Baba, एक molecule, second molecule, single step reaction, forward reaction, enolization is RDS. Now just tell me, rate will be equal to rate constant into concentration of acetaldehyde and OH minus. Order is equal to molecularity. I have molecularity 1 of both the cases. So the net order of the reaction is second order reaction. Agreed? Yeah. Very good. Now the thing is, this is RDS. Now after formation of enol, right, what will happen? Step 2 is nucleophilic addition. Now tell me one thing, which is a better nucleophile? Philic addition. Which is a better nucleophile? C minus adjacent to C double bond O or OH minus. So negative charge on oxygen is a better nucleophile or negative charge on the carbon is better nucleophile? Which is the better donor? Carbon or oxygen? Oxygen. Beta, which is more electronegative, oxygen or carbon? Oxygen. So but the carbon is in a resonance, right? Let it be. There's like the meager resonance over there. Still C minus will be like more nucleophilic as compared to C double bond, or just as compared to OH minus. Is it possible for this C double bond to make the electronegativity of carbon much higher than this OH, this oxygen one? No. अगर ऐसा होता तो which is more acidic, water की acetaldehyde?
Which हाँ, CH bond is more acidic? OH or CH bond? OH. Beta, water is acidic than acetaldehyde, right? So obviously, one C double bond O cannot do anything over there. Still, C minus will be more nucleophilic. So whenever I have carbon acting as a nucleophile and OH minus acting as a nucleophile, what is the major nucleophile over here? C minus, right? So what will happen? I'll take acetaldehyde and I'll take this enol ion, right? Now this enolate ion, what it'll do? It'll undergo nucleophilic addition reaction. All nucleophilic addition reactions are reversible. So I'll be getting CO minus C, C double bond O, H. Yeah, देखो O minus आया मेरे पास, right? O minus is RO minus a stronger base, right? If it is a stronger base, this stronger base can extract H plus from water. And what I'll get over there, a stronger base makes a weaker base. तो RO minus ने क्या किया? OH minus बनाया. तो yeah, correct. I got this till now. Now understand, whenever one molecule and second molecule, now they are undergoing addition with each other, this is known as aldol. Getting it? This product is known as aldol. Now still only addition takes place. Now what do you mean by condensation? What are condensation reaction? The reaction in which two reactant combine together. The reaction in which two reactant combine together and there is a loss of a small group takes place. That is condensation. अभी तक कोई भी ग्रुप लीव नहीं किया. हुआ क्या? बेस ने H प्लस निकाला, C माइनस ने C डबल बॉन्डो पे अटैक किया एंड पहले बेस यूज हुआ था, दोबारा से बेस वापस बन गया. तो OH minus utilized over here and OH minus formed back over here. So the net consumption of OH minus till now is 0, right? And two molecules are adding over each other. कोई doubt इसके अंदर? हाँ. Now, so this is aldol addition अभी तक, ठीक है? Now step 3, elimination. यार तीन टाइप की एलिमिनेशन हमने करी थी, कौन कौन सी? E1, E2 और E1CB. E1 के अंदर एसिडिक मीडियम, E1 के अंदर तुम्हारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है. नाउ टेल मी, आई वांट दैट OH शुड लीव. इज इट पॉसिबल फॉर OH टू लीव इन बेसिक मीडियम? क्या बेसिक मीडियम OH को एक्टिवेट करेगा या गुड लिविंग ग्रुप में? नहीं. तो ना तो E2 हो पाएगा बिकॉज वेरी बैड लिविंग ग्रुप, ना तो E1 हो पाएगा बिकॉज कार्बोकैटायन कैन नॉट फॉर्म. एक और रिएक्शन था E1CB. E1CB की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? आई हैव अ बैड लिविंग ग्रुप और अल्फा कार्बन पे एक ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए जो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करे, है ना? हाँ. Now I have a leaving group over here and this is the alpha carbon right now, है ना? Yeah. Now I have this hydrogen. Is this hydrogen is acidic? Yeah. तो क्या होगा? Base will extract H plus and on heating, what will happen? I'll get CCOH, C minus, adjacent to C double bond O, CH3. Now adjacent to C double bond O and H here. Now understand that this C negative charge is stabilized by this resonance, that is why it is forming over here. Now tell me, whenever I have a negative charge and on the adjacent carbon, I can have a good leaving group or a bad leaving group, but this negative charge does. It forms a pi bond and OH minus will leave. I'll be getting C, C double bond C, C double bond O, H. Any doubt in that? This reaction is E1CB. Understood? Yeah. सबको बात समझ में आई? वहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी CHO आ जाएगा एंड आई विल बी गेटिंग C double bond C in conjugation with C double bond O always. So I'll be always getting conjugated ketone group or conjugated C double bond O.
always. Have I made my point clear? So but ये elimination क्यों हो रहा है? बेटा एक बार बता, तुम हीट कर रहे हो ना बेसिक मीडियम में? Okay, okay. एलिमिनेशन हैपन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, हाँ, विदाउट हीटिंग heat, एलिमिनेशन right. नहीं होगा, राइट? है ना? हाँ, सिर्फ एडिशन तक रुक जाएगा वो। तो अब एक काम करो, इस पूरे मैकेनिज्म को ना एक बार दोबारा देखो, एंड देन लिख लो ढंग से। सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने ये चेक किया कि OH माइनस अ वेरी बैड न्यूक्लियोफाइल, तो वो तो ऐड करने से रहा। तो अगर इनॉल बनता है तो इनॉल बनाओ, C माइनस को ऐड करवाओ, बिकॉज C माइनस इज अ बेटर एडिशन कम व्हाट ग्रुप एज कम्पेयर टू OH माइनस। तो फर्स्ट यू विल डू, यू विल फॉर्म इनॉल। तो सबसे स्टेबल इनॉल बनाना है, वो RDS होता है। इनॉल बनाने के बाद यू हैव टू डू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखो यार, सबसे पहला H प्लस यहाँ से गया, यहाँ से H प्लस गया सबसे पहले। यही कार्बन को एनालाइज करो, दोबारा से C डबल बॉन्ड OH बन गया। यहाँ पे यही कार्बन था जहाँ से H प्लस गया था पहले। अभी भी उसी कार्बन से एक और H प्लस गया, और जो ये पहले C डबल बॉन्ड था जो बाद में OH बना, वो OH निकल के यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। बोलो हाँ या ना? चेक कर लो। हाँ, पहले C माइनस ऐड हुआ, उस पहले फिर वो OH बन गया। तो वही कार्बन ने जिसने H प्लस दिया था पहले, दोबारा से उसने H प्लस दिया, पाई बॉन्ड बनाया और OH निकल गया, एलगेट C डबल बॉन्ड C। तो C डबल बॉन्ड हो तुम्हारा, C डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट हुआ, और जो कार्बन ऐड हो रहा था उसने 2 हाइड्रोजन लूज करे, है ना? हाँ, एंड द एंटायर रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम, पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो होगा क्या फाइनली? शॉर्टकट ये कहता है, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड होता जहाँ पे एडिशन हो रहा था, ये वाला कार्बन था जो इनॉल बना रहा था। जो कार्बन इनॉल बना रहा है वो पूरे मैकेनिज्म में कितने हाइड्रोजन लूज कर रहा है? 2, और ये C डबल बॉन्ड हो पूरा निकल के क्या बन रहा है दोनों कार्बन के बीच में? double bond. हाँ, तो -H2O, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, यहाँ से ऑक्सीजन गया, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं। बी हैप्पी, आई विल गेट दिस प्रोडक्ट दैट इज नोन एज एल्डोल। condensation. Understood? Understood? तो अगर RDS तुम्हारा इनॉल फॉर्मेशन है, तो तुम्हारे जहन में और तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि यू हैव टू फॉर्म H greater than T greater than T. मोस्ट स्टेबल इनॉल। और लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए थे जिसके अंदर ये बताया था कि कौन ज्यादा इनॉलेट आयन कंटेंट बनाएगा, जहां पे डिफरेंस रेजोनेंस की वजह से था, और जहां पे डिफरेंस, Acidic जहाँ hydrogen पे की वजह से. एग्जैक्टली अंडरस्टूड, जिस इंडक्टिव Yeah, इफेक्ट की वजह से था, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो एसिडिक नेचर इज डिफर्ड बाय रेजोनेंस, और एसिडिक नेचर विल बी डिफर्ड बाय व्हाट? इंडक्टिव inductance. इफेक्ट। ठीक है, तो आई गेस तुमने इतना लिख लिया, ये लिख लिया। नहीं सर, लिखना है. हाँ, तो सिंपली राइट डाउन हियर यूजलेस रिएक्शन। पूछना क्यों? बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी रिवर्सिबल, reaction is highly reversible, and I do have enolate as an option. So better product will be given by enolate ion because C minus is a better addition molecule as compared to OH minus. Yeah. Great.
ए डन। यस सर। हाँ चले सर। आगे। हाँ चलो बढ़िया। कहाँ थे हम लोग? ये हो गया, ये हो गया, एलिमिनेशन डन। सो प्राउड ऑफ यू। नाउ लिसन गाइस, नेक्स्ट थिंग इज क्रॉस एल डॉट। तो पूरा नहीं क्रॉस एल, लिखा। हाँ पूरा नहीं लिखा, कहाँ तक लिखा? ये लिखा है ना? नहीं ये लिखना है। सो ये आप जूम आउट लिख कर दो ना, लिया। 5 मिनट लिख लेते हैं। हाँ ले भाई, दिख रहा है तुमको? हाँ दिख रहा है। हाँ सही लिख लिया। ग्रेट, सबने लिख लिया? हाँ सर। ओके। लिख लिया? एक सेकंड का लास्ट है बस। ए झिंगुर, तू लिख रहा? हाँ सर हो गया।
हो गया। Great. Now listen. ये भी हो गया ना? Shortcut. Short method. इसके बाद क्रॉस एल्डोल करना है, ठीक है। क्रॉस एल्डोल में वी विल डू सम रिसर्च ओवर द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तुम बताना कि मेजर प्रोडक्ट क्या आने वाला है एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। ओके, चलें आगे। हाँ। Now listen, in So, cross aldol, no, in cross aldol, what we did, I have taken CH3, 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 C double bond of CH3 acetone, and I have taken acetaldehyde, and I have added these molecule in the presence of OH minus, that is 10%, and I'm heating it. I want to calculate the major product. Okay. Now tell me one thing. What is RDS? enolization. The answer is enolization. Correct. Now in enolization, we have to form what? Enol. Most stable enol, right? Rate Yeah. will be governed by most stable enolate ion. अब 2 मिनट चुप रहना वेदांत। हर्षनी, ओ हर्षनी, बेटा इन दोनों में से स्टेबल इनोलेट आयन कौन बनाएगा? एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड? एसीटोन। व्हाई? व्हाई? अरे बेटा बताओ ना, व्हाई? हर्षनी, बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट यही था। हर्ष, नो हर्ष, हाँ सर। एसीटोन स्टेबल इनोलेट क्यों बनाएगा? अव्वल तो ये बताए वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा स्टेबल? सर नहीं बनाएगा क्योंकि प्लस है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, जहाँ पे रेजोनेंस इक्वल है, wherever I do have the same resonance everywhere and the difference occur due to inductive effect, I know that the CH3 will donate electrons, so negative charge increases, right? So this will become less stable, but the difference is only because of inductive effect. No, in those cases, what is the thing which will follow in order to check the most stable enolate ion? Amar, what do you do in that case? In that scenario, what you will do? हाँ जी, अमर, am I audible? Yes, sir. मैं क्या पूछ रहा हूँ दोस्तों से? अगर एक्चुअली मैं 2 डिफरेंस, मिनट बाहर गया था, इसलिए मैं सुनाई नहीं दिया। तो क्लास छोड़ के बाहर चला गया? हाँ, my mom had called me. Yes, sir. इन दोनों में स्टेबल यूनिट आयन कौन बनाएगा? लेफ्ट वाला, ऐसा क्यों? क्योंकि फिर
एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, राइट वाला इंडक्टिव कम, क्यों ऐसा? इंडक्टिव इफेक्ट कम है। अच्छा, ये सारे बच्चा पार्टी एक काम करो, लास्ट क्लास के नोट्स का ना लास्ट पॉइंट पढ़ो। लास्ट क्लास के नोट्स का सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ो जल्दी, टाइम नहीं है, 2 मिनट दे रहा हूँ। Again, it is getting online because of this virus issues, right? Your classes will be online again everywhere. क्यों? Offline classes will be off till December 15. Government announced in Maharashtra. लेकिन There केसेस will तो इतने be, लो है ना। doesn't matter. The thing is, the new virus is coming na, to avoid the spread of that virus, and this virus supposed to attack on the younger kids in a very nice way. तो Young वैक्सीन का भी कोई people. फायदा नहीं है। कूल है ना, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी वैक्सीनेशन लेने के बाद। हाँ बहुत। अब इसका वो भी नहीं पता कि रिपरकशंस क्या है इसके, लाइक मोर डेंजरस लेस डेंजरस, भी आइडिया नहीं है किसी को भी ढंग से। होपफुली ये रोक दें इसको इंडिया में स्प्रेड होने से, मुश्किल है। एनीवेज, द केस वेयर डिफरेंस एग्जिस्ट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, आई टोल्ड यू टू ड्रॉ इनोलेट आयन, and after drawing the inolate ion, check the stability of C double bond C by hyperconjugation. This is stabilized by 3 hyperconjugation structure. This is stabilized by 0 hyperconjugation structure. So the inolate ion which is more stabilized by hyperconjugation will form larger amount, right? So Yeah. will acetone forms stable enol or acetaldehyde will form stable enol? एसीटोन। Acetone. मतलब एसीटोन जो है वो अपना CH3 ग्रुप डोनेट करेगा, इट विल फॉर्म इनोलेट, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये इनोलेट आयन C- बनने के बाद कहाँ अटैक करेगा? एसीटोन पे अटैक करना चाहिए, एसिटाल्डिहाइड पे अटैक करना चाहिए, कहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट फास्टर होगा, बिकॉज इसको नेक्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना। तो किस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्टर होगा, 1 या 2? 2। व्हाई? हिंडरेंस। Steric hindrance. This is major. After that, second major will be governed by the same enolate ion, but attack will be takes place on acetone. बोलो हाँ। हाँ। यहाँ से H2 जाएगा, यहाँ से O जाएगा, minus of H2O. I'll be getting this product. Here H2O, दोनों कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड C बनेगा, CH3 and CH3. Third major will be governed by this enolate ion now. अब ये जो इनोलेट आयन है ये किस पे अटैक करेगा? एसिटाल्डिहाइड पे कि एसीटोन पे? तो मेरे को डाउट है, अगर एसीटोन बेटर इनोलेट बना रहा है तो हम लोग उसको क्यों नहीं फर्स्ट में जो बोल रहे हैं? उसको क्या बोल रहे हैं? Why is that not the major product? बेटा That एसीटोन acetone makes इनोलेट the बना रहा है, बट एसीटोन इनोलेट बनाने के बाद अटैक कर रहा है ना न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक सेकंड स्टेप हो गया ना, वो कहाँ पे करेगा इजियर? so, पर अगर एसिटाल्डिहाइड RDS इनोलाइजेशन और वो सबसे एक मतलब मिनट वो एक मिनट कम एनर्जी ले रहा है तो फिर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर ये स्टेप 1 दोनों के लिए सेम है तो गवर्निंग फैक्टर क्या होगा?
पर कहाँ है सेम दोनों के लिए? क्या बात कर रहा है, दोनों के इनोलेट आयन सेम नहीं बनेगा? पर एक ज्यादा स्टेबल बनेगा ना। कौन सा, एसिटाल्डिहाइड की एसीटोन? एसीटोन। तो एसीटोन से तो इनोलेट बनाया ना, पहले भी एसीटोन से बनाया, बाद में भी एसीटोन से बनाया। तो मेजर प्रोडक्ट तो एसीटोन ही गवर्न कर रहा है, अच्छा दूसरा तो हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी। तीसरा एसिटाल्डिहाइड बना रहा है इनोलेट आयन। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, एसिटाल्डिहाइड पे कि एसीटोन पे? एसीटोन। ऐसे एसिटाल्डिहाइड पे ही करेगा। H2 हो जाएगा। और थर्ड? लास्ट एसीटोन एसीटोन। पे अटैक। दिस द माइनर प्रोडक्ट। तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं ओवरऑल? 4। ना, A is not equal to B, A is not equal to B, दो, सिस्टम ट्रांस। A is equal to B, एक। A is not equal to B, A is not equal to B, दो। A is equal to B, एक। नो सिस्टम ट्रांस। टोटल। अंडरस्टूड? या। लिख लो। एक मिनट आया मैं। लिख लिया? एक मिनट सर। हम्म। लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया।
डन। Yes. एक बात बताओ, प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे और मेजर टू माइनर कितने आएंगे? कौन इनोलेट बनाएगा, कहाँ पे अटैक होगा, ये सब बताओ। राइट वाला इनोलेट बनाएगा। राइट वाला कौन से कार्बन से इनोलेट बनाएगा? 2। 2 से। बनाओ जरा, प्रोडक्ट बनाओ, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है सारे बनाओ। एग्रीड। पहला स्टेबल इनोलेट यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद यहाँ से। पहला हाँ 2, फिर 1, एंड देन लास्ट इज 3 वाला, है ना? या सबसे पहले किस पे अटैक होगा, एसिटाल्डिहाइड पे कि ब्यूटेनॉल पे? ब्यूटेनोन पे। एसिटाल्डिहाइड, फिर ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, फिर एसिटाल्डिहाइड, फिर ब्यूटेनोन, फिर एसिटाल्डिहाइड फिर ब्यूटेनोन। फिर ब्यूटेनोन। मेजर प्रोडक्ट H2O। क्या बनेगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड C, CH3H, C डबल बॉन्ड O, H, CH3। दो प्रोडक्ट बनेंगे, A इज नॉट इक्वल टू B। इधर A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B। दो प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B, दो प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B, दो प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B, दो प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। दो प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहा है? 12, राइट? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। बढ़िया। डन।
Over. Yes, sir. Very good. Next. Intramolecular aldol condensation. RD is this ring formation. Stability of ring. 6-member is more stable than 5-member. 5-member is more stable than 7-member. ये सबको पता है एंगल स्ट्रेन की वजह से. Got it? It is more stable than 4-member. It is more stable than 3-member. Understood? Understood? So RDS Yeah. is ring formation, stable ring formation you do check. Now listen, the thing is I have C double bond O, CH2. Fine. Wait. CH2, 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 C double bond O, CH3. Right? What I am doing, I am adding base in the presence of heat, so I know that intramolecular aldol condensation takes place. Now, what is my perspective over here? Right? Now, listen, the very first perspective which we will study over here is I have to check which all hydrogen, which all carbon are acidic here. So the carbon number 1, carbon number 3, and carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. They're acidic, right? Yeah. If this is forming enol and this is attacking on this C double bond O, so which member ring I'll get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unstable, right? If this negative charge, this enolate ion is attacking on this C double bond O, so I'll be getting 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I'm getting 6-member ring from here. Now, if this CH2 is forming C minus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 attacks here, 6-member ring. So these are the two CH2 groups which can form 6-member rings. Agreed? Now, when 6-member rings are equally stable, then you have to go for second RDS, which is enolate ion formation, right? Now, among carbon number 3 or among carbon number 7, which will form more stable enolate ion? Hanji? 3. 3. Obviously, because more number of hyperconjugation structure will be there, right? So here 2 hyperconjugation structure, here 5 hyperconjugation structures are there. So a shortcut is there. Understand the shortcut. 1, 2, 3, 4, 5. C डबल बॉन्ड हो CH3. यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा. तो 2 हाइड्रोजन लिख लो यहाँ पे H2 और यहाँ से O. दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा. Understood? So make a 6-member ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm making a 6-member ring. Let's say this is the carbon here. This is forming pi bond with this carbon. On the very same carbon, I have C double bond to CH3 attached to it. समझ में आई बात? Again, C double bond C will mean resonance with C double bond O, because in aldol always conjugated C double bond O will form. कोई doubt इसके अंदर guys? नहीं सर. समझ में आया? Next. ये तुम्हारा पहला केस है, लिख लिया इतना? लिख लिया सर.
Great. Now listen, guys. Second question. Second thing. Second question here. I have SC double bond O, CH2, 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 C double bond O. 1 second. C double bond O, CH3. Now tell me, this is acidic carbon, this is acidic carbon, this is acidic carbon. So carbon number 1, 3 or 5, which will form more stable enolate ion here. Three. बेटा अगर तीसरा कार्बन इनोलेट बनाएगा तो ये अगर सी डबल बॉन्डो पे अटैक करेगा तो कौन सी मेंबर रिंग बनेगी? 3. 1 2 3 4 इस पे अटैक करेगा तो कौन सी मेंबर रिंग 4. बनेगी? 4 4. मेंबर. ठीक है, अगर ये वाला कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा तो भी 4 मेंबर रिंग बनेगी, तो ये भी 4 मेंबर बनाएगा. और ये क्या बनाएगा? ये वाला 6. अगर ये 6 मेंबर कार्बन रिंग बना रहा है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? 6 membering. तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल लो, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लो, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना लो. तो मेजर प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा 6 मेंबर रिंग. लेट्स से दिस कार्बन इज दिस, आई हैव अ पाई बॉन्ड एंड दिस इज सी डबल बॉन्ड. एनी डाउट? No. वेरी गुड. थर्ड, हाँ जी, 1 2 3. अगर एक्चुअल नंबरिंग करनी है तो आयु पैक के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7. कौन सा कार्बन इनॉल बनाएगा, कहाँ पे अटैक होगा? कौन सा कार्बन इनॉल बनाएगा, कहाँ पे अटैक होगा? 5th. हाँ, 5th कार्बन बनाएगा, 1 पे अटैक करेगा. फिफ्थ कार्बन बनाएगा, 1 पे अटैक करेगा, बिकॉज दोनों साइड क्या हो रहा 5 membering. है? अंडरस्टूड. Yeah. कोई डाउट इसके अंदर? गाइस कोई डाउट इसके अंदर? नहीं sir. ओके, मेजर प्रोडक्ट बनाओ इसका जरा. यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, 5 में और पहले के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा. तुम्हारे पास 5 मेंबर रिंग बनेगी. लेट्स से दिस इज कार्बन नंबर 5. इस कार्बन नंबर 5 पे कार्बन नंबर 1 पाई बॉन्ड बना रहा है और इसी कार्बन नंबर 5 पे बाहर की तरफ सी डबल बॉन्ड और CH3 है. डन. Yeah. अंडरस्टूड. गाइस अंडरस्टूड. Yes sir. ग्रेट. चलें आगे. हाँ sir. ओके, नाउ लिसन. रिट्रोएल्डिहाइड, रिट्रोएल्डोल
condensation. Question is, I have this molecule CH3 C double bond O. ठीक है, मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, मैंने इसको ना OH माइनस हीट किया तो मुझे मेजर कंपाउंड चाहिए, कैसे करें? क्या अभी आ रहा है क्या? आवाज आ रही है अभी? हाँ अब आ रहा है। हाँ अब ठीक है? लैग हो रहा है क्या? अब ठीक है। श्योर? अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैकेनिज्म है इसका, ठीक है? स्टेप 1 इनलाइजेशन, करेक्ट? स्टेप 2 क्या या होता है? स्टेप 2 क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा, स्टेप 1 में रिवर्सिबल है, स्टेप 2 भी रिवर्सिबल है, राइट? या राइट, स्टेप 3 भी रिवर्सिबल है जिसमें एलिमिनेशन हो रहा है ना? करेक्ट? हाँ हाँ नाउ एक बार बताओ, मुझे इस मॉलिक्यूल से वापस जाना है इस मॉलिक्यूल पे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल पे, क्योंकि रिवर्सिबल है ना पूरा, है ना? तो कैसे जाएंगे मुझे बताओ। पहले तो ये बताओ, ये जो मॉलिक्यूल है ये किस टाइप की रिएक्शन देता है? बाबा ये क्या देगा? गाइस, एम ऑडिबल? यस सर। हाँ, मैंने क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड कीटोन। कि कॉन्जुगेटिव के टाइप की एडिशन देते हैं, 1 2 या 1 4? डिपेंड करेगा। बेटा इस केस में क्या देगा यार, OH माइनस है ना, लिथियम 1 2 मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कुछ भी नहीं है। क्या? 1 4 सॉरी 1 4 देगा। 1 4 के अंदर शॉर्टकट क्या बताया था, पहले क्या करोगे? आई बॉन्ड को ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस ज्यादा चेक करो, रेजोनेंस बना के ये हाँ चेक करो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है ना? तो रेजोनेंस ब्रेक करो, पहले ये चेक करो कि पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे आ रहा है। 1 2 3 4 कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है? 4 तो क्या करूं मैं? OH ऐड कर दो। यहाँ पे OH ऐड करूंगा, यहाँ पे H ऐड करूंगा, राइट? या बेटा एक बात बता, जिस कार्बन पे OH है और कुछ भी ग्रुप लगा हुआ है तो ये OH क्या करेगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये वाला ग्रुप, लीव। तो अगर ये लीव कर रहा है तो मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड H फॉर्मेल्डिहाइड आएगा और यहाँ पे एसीटोन निकलेगा, है ना? ये C माइनस नहीं निकल रहा है, ये C माइनस एडजेसेंट टू C डबल बॉन्ड निकल रहा है, तो निकल सकता है, बिकॉज हर एक रिएक्शन रिवर्सिबल है, चेक कर लो। हाँ अगर ये C माइनस अटैक कर रहा है तो ये OH पाई बॉन्ड बना के फिर से इसको निकाल सकता है ना, वापस आ सकता है ना, पूरा स्टेप वापस आएगा ना, जिसमें ये डबल बॉन्ड वापस बनाएगा और ये निकल जाएगा, राइट? जिसमें OH हाँ डबल सर। बॉन्ड बनाएगा, ये निकल जाएगा, तो ये रिएक्शन एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैंने तुमको ये मॉलिक्यूल दिया, अब मुझे OH माइनस ऐड किया, तो जब OH माइनस ऐड किया एक बार 1 4, मुझे बताओ किस कार्बन पे OH ऐड होगा, किस कार्बन पे H ऐड होगा? एक मिनट। 1 पे अटैक करेगा।
1 पे पाई बॉन्ड है कहाँ है यार? सर पर OH थोड़ी ना पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। यहाँ पे किस पे अटैक करवाया तुमने? रेजोनेंस करवा के पाई बॉन्ड ब्रेक करवाया ना तुमने। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे ओके, हाँ सॉरी सॉरी। ओएच कहाँ अटैक करेगा इधर? ये तो ओके। ऑलरेडी एल्डोल का प्रोडक्ट है ना। सी हाँ, डबल बॉन्ड से एडजेसेंट टू सी डबल बॉन्ड हो तो क्या करेगा ये? 2 पे अटैक। 2 पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ OH डालोगे, यहाँ CH3 डालोगे, यहाँ पे H डालोगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CH3 बनाओगे। अब जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है और कुछ भी लगा हुआ है तो ये OH क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा और ये लीव करेगा। बोलो हाँ। हाँ तो C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन आ गया CH2, बीच में एक कार्बन आ गया ये वाला CH2, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो और ये आ जाएगा CH3, रिंग ओपन हो गई। अब मुझे बताओ एक्चुअली में स्टेबल एल्डोल प्रोडक्ट कौन सा बेटर से? तो वापस बोल सकते हैं, थोड़ी ब्रेक हुई आवाज। अब अगर दोबारा से एल्डोल करोगे तो कौन सा कार्बन अटैक करेगा और कहाँ पे अटैक करेगा? तो 3 मेंबर तो बहुत अनस्टेबल था, राइट? हाँ, तो क्या बनेगा ये? एक्सट्रीम मतलब CO के लेफ्ट पे अटैक करेगा। हम्म यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ भी का अटैक कर सकते हैं, कंपाउंड सिमेट्रिकल है। तो यहाँ से H2 गया, यहाँ से O गया, 5 मेंबर रिंग बनेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दो। अगर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालोगे तो लेट्स से ये वाला कार्बन यहाँ पे है तो ये C डबल बॉन्ड C आ जाएगा, राइट? राइट, वेट, या ये C डबल बॉन्ड C आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, है ना? तो ये मेजर कंपाउंड हो जाएगा। तो तुमने क्या किया? 3 मेंबर को तुमने पहले ओपन अप किया एंड देन तुमने यहाँ पे अटैक किया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सिमिलरली एक शॉर्टकट समझो, ठीक है? अगर तुम्हारे को एक क्वेश्चन दे रखा है कि HC डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड C, राइट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे, हाँ, ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है? यार एक बात बताओ, इनोलेट आयन कौन बनाता? अगर तूने मैकेनिज्म चेक किया, ठीक है, 1,4 एडिशन नहीं भी करवाता उससे बड़ा शॉर्टकट लेते हैं, तो मुझे एक बताओ, जो कार्बन एडजेसेंट में होगा C डबल बॉन्ड होके वही नेगेटिव चार्ज बनाएगा ना? तो ये कार्बन इनॉल बना रहा होगा। बोलो हाँ या ना? बिकॉज जो कार्बन इनॉल बनाता है वहां से 2 हाइड्रोजन लीव करते हैं, राइट? जो कार्बन इनॉल बनाता है, ये कार्बन इनॉल बना रहा है, तो इस कार्बन के जो एडजेसेंट C डबल बॉन्ड है वो हमेशा रिटेन रहता है। या तो ये वाला कार्बन था जो एडजेसेंट था C डबल बॉन्ड होके जो इनॉल बना रहा था, और यहाँ पे ना इस कार्बन पे क्या हुआ करता था पहले? C डबल बॉन्ड हो, राइट? हाँ तो यार मुझे बताओ, अगर ये कंपाउंड तुमको दे रखा है और इसमें बोला हुआ है मैं ना OH माइनस डाल के हीट कर रहा हूँ, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो मुझे बताओ इन दोनों कार्बन में से, कार्बन नंबर 1 और कार्बन 2 में से इनॉल कौन बनाएगा? क्यों नहीं? वहाँ पे एडजेसेंट में C डबल बॉन्ड है ना, कार्बन नंबर 2 के एडजेसेंट में C डबल बॉन्ड है जो इनॉल बना रहा होगा, करेक्ट? नहीं। राइट, फिर 1। 1, सर पर अगर 1 वन, से तो 3 मेंबर रिंग आएगा ना।
अरे 3 मेंबर कहाँ से आएगा? मेंबर तो बन ही नहीं रहे थे। रिंग होती तो मैं रिंग बना के देता ना तुमको। कोई रिंग बन रही है क्या इधर? मैं तो बहुत सिंपल सी एक चीज पूछ मिनट। रहा हूँ। साइक्लिक थोड़ा ना। साइक्लिक को तो साइक्लिक बना के देता मैं तुमको। हाँ हाँ सॉरी, ये उल्टा प्रोसेस है। हाँ तो क्या कहाँ पे अटैक करना चाहिए? कहाँ पे कौन सा कार्बन इनॉल बनाना चाहिए तुम्हारा? कार्बन नंबर 1 वन या बनाना कार्बन नंबर चाहिए। 2? तो कार्बन नंबर 1 जो एडजेसेंट है ना सी डबल बॉन्ड होकर, वो इनॉल बनाता है ना। H प्लस निकलता है, दोबारा H प्लस निकलता है। तो अगर तुमको इंडिविजुअल रिएक्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दो, बिकॉज ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो जस्ट ब्रेक द मॉलिक्यूल। यहाँ 2 हाइड्रोजन डाल दो, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो वापस डाल दो। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारे पास ब्यूटेनोन आया और एसिटाल्डिहाइड आया। फिर तुमने OH माइनस हीट किया, तो ये कार्बन दोबारा इनॉल बनाएगा और यहाँ पे अटैक होगा। तो जो मेजर कंपाउंड बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाउ हाँ टू ओपन अप द थिंग, हाउ टू रिवर्स द रिएक्शन, and how to make it forward again to have the most stable product. Have I made it clear? कोई डाउट किसी को इसके अंदर अभी? नहीं। Okay. Now, guys, listen. Enolization is acid and base catalyzed, right? Correct. So aldol can also takes place in acidic medium, because acidic medium में भी तुम्हारा इनोलेट आयन बनता है। करेक्ट। हाँ एसिडिक मीडियम हीट H3O प्लस देन हीट, मतलब तुम डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। अगेन यहाँ से H2 जाएगा, यहाँ से O जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O, CH3 H आ जाएगा। गॉट इट? या ग्रेट। ए गाइस, एल्डोल समझ में आया? एवरीवन? हाँ ग्रेट। नेक्स्ट स्टेप, कानिजारोस। ए, कानिजारो की स्पेलिंग क्या होती है? सही है शायद। रुक जा यार। कानिजारो। हम्म, ZZARO apostrophe. Caniezaro's reaction. Now understand, this reaction will be given by those aldehydes which doesn't have any alpha acidic hydrogen. This reaction takes place in concentrated NaOH medium, which is 40% by NaOH, and
first the nucleophilic addition of OH minus takes place. Then intermolecular hydride transfer takes place between two molecules, between hydrate and other ketone molecule, other carbonyl molecule. This step is RDS, and a redox reaction. In short, disproportionation reaction takes place. हाँ, इतना लिख लो, then we'll move ahead. I'll tell you the mechanism, क्या होता है क्या नहीं होता. लिख लिया? नहीं इतना लिखो लिखो. अमर कहाँ है तू? इधर ही हूँ मैं। तो समझ, अरे तू कुछ पूछता क्यों नहीं बीच में? आज बहुत लो फील कर रहा हूँ, एनर्जी नहीं है मेरे में। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं है अभी। क्यों मतलब मेरे को नहीं पता। क्या किया ऐसा तूने? खाया पिया पानी पिया। रेड बुल लेके आना. उसके लिए दुकान तक चल के जाना पड़ेगा और उतना एनर्जी नहीं है मेरे। डंजो है ना ऐप, उसके वो लिए पहले डाउनलोड करके 3, अकाउंट बनाना पड़ेगा, उतना एनर्जी नहीं है मेरे। वो उसमें 3 इनिशियल ऑर्डर फ्री होता है डिलीवरी. मुंबई में तो डंजो काम करता है, राइट? हाँ लेकिन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ना, तो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। मैं ध्यान दे रहा हूँ, हाँ, अगर आपको उसका टेंशन है तो फिर चलेगा। मतलब आई एम पेइंग अटेंशन, डोंट वरी। अच्छा, तो एक क्वेश्चन का आंसर दो. नॉट दैट मच अटेंशन आल्सो। ना ना ना, एक क्वेश्चन का आंसर है ना. जब डिफरेंस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू होता है तो स्टेबल इनोलेट कौन गवर्न क्या करता है? क्या 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 क्या? जब डिफरेंस इंडक्टिव इफेक्ट के लिए होता है, आज रेजोनेंस सेम होता है दो कार्बोनिल मॉलिक्यूल के अंदर, तो कौन सा कार्बन ज्यादा इनोलेट आयन बनाता है? जो कम स्टेबल हो। ये बताया था मैंने. अरे अरे एक मिनट सोचने दो। जो ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है ना वो। ये बताया था मैंने. हाँ ये बताया था मैंने. तो बताओ आपने क्या बता रहा। अमर एक काम कर, छोड़, तू सो जा आराम से, कल बात करते हैं. तू जा. नहीं नहीं, आधा घंटा ही है, मैं ध्यान दे रहा हूँ। कॉपी कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। तो कॉपी किस तरीके से कर रहा है? रीजन नहीं लिख रहा साथ में? रफली देख रहा हूँ थोड़ा। तू करना क्या चाहता है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना?
चाहते क्या हो भाई, ये बता दो ना। ध्यान दे रहा हूँ, अब पढ़ाओ। डन गाइस, लिख लिया। हाँ हो गया लिख के। नाउ लिसन गाइस, होता क्या है इसके अंदर, मॉलिक्यूल्स लाइक HC डबल बॉन्ड OH, इसके पास तो अल्फा एसिडिक कार्बन भी नहीं है। दैट इज 2,2-dimethyl propanol, कोई अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है अल्फा कार्बन पे। बेंजाल्डिहाइड, कोई हाइड्रोजन नहीं है, और उल्टा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। एक्सेट्रा विल शो कानिजारो रिएक्शन, जहाँ पे अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, राइट। ना सबसे पहले ना वी विल गो फॉर सेल्फ कानिजारो रिएक्शन। सेल्फ कानिजारो रिएक्शन, ठीक है। उसके अंदर लेट्स से आई विल टेक बेंजाल्डिहाइड। Benzaldehyde I have kept in large amount of OH minus, generally 40% by any OH solution is there, right? And what exactly will happen? Just tell me. यहाँ पे इनॉल तो बनेगा नहीं, right? Now what is the step one which will happen? जब इनॉल नहीं बन रहा है तो किस पे ध्यान दोगे? न्यूक्लियोफिलिक Addition. एडिशन रिएक्शन, पता है क्या? बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड पे OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहा है, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है। ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल। तुमने ज्यादा OH माइनस डाला है तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चार्टे प्रिंसिपल, दिस रिएक्शन विल मूव स्लाइटली फॉरवर्ड बिकॉज OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज हायर। फिर से ये डबल बॉन्ड बनाएगा वापस, फिर से OH माइनस निकलेगा, फिर से बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, फिर से OH माइनस अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन जो है इट कीप्स ऑन हैपनिंग इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज RDS स्टेप 2? Hydride shift. ना शिफ्ट नहीं, ट्रांसफर। शिफ्ट बहुत अलग होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर, दैट इज RDS। इंटरमोलिकुलर, नॉट इंट्रामोलिकुलर। दिस इज RDS, रीडिटर्मिनिंग स्टेप। तो होता क्या है, तुम्हारे पास ये हाइड्रेट बना, दिस इज हाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ बेंजाल्डिहाइड। तो होता क्या, once in a while when your benzaldehyde, another benzaldehyde molecule comes in a very close vicinity with this hydrate, तो यहाँ पे C डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड बनाएगा एंड हाइड्राइड जो है ना H माइनस ये ट्रांसफर करेगा। या बहुत इजी है, बहुत टफ है। H माइनस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक R माइनस। तो अगर H माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और H माइनस जनरली नहीं निकलता है, तो ये वाला जो स्टेप है इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी, और होगा क्या, आई नो दैट हाइड्राइड ट्रांसफर बहुत टफ रहता है, ठीक है। H माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो लिविंग टेंडेंसी बहुत कम है। देन व्हाट विल हैपन, जब C डबल बॉन्ड हो इन अ वेरी क्लोज विसिनिटी ना, तभी पाई बॉन्ड बनाएगा, H माइनस लीव करेगा और ऐसे रिएक्शन होगा। ये कार्बन तुम्हारा C डबल बॉन्ड बना रहा है, तो पार्शियल बॉन्ड बनाया तो O डेल्टा नेगेटिव बचा, H माइनस निकल रहा है और H माइनस अटैक कर रहा है, तो कोई चार्ज नहीं हाइड्रोजन पे। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ बेंजाल्डिहाइड बनेगा।
ये बेंजीन फिनाइल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे OH बना हुआ है। Now this is bond formation, this is bond breakage, this is bond formation, this is bond breakage. So what will happen here finally? ये C डबल बॉन्ड आया, OH बना, H माइनस वहां पे अटैक किया तो CO माइनस बना, H बना, H बना और ये pH आ गया, है ना? हाँ अब सुनो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेस क्या करेगा, यहां से H प्लस निकालेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट, तो तुम्हारे पास बेंजोइड बनेगा, सोडियम बेंजोइड। और ये बताओ, ये RO माइनस है, एल्कोक्साइड। RO माइनस ज्यादा बेसिक होता है OH माइनस से, तो RO माइनस क्या करेगा, वाटर से H प्लस निकालेगा और OH माइनस बनाएगा, तो स्ट्रॉन्गर बेस मेक्स अ वीकर बेस, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास CH2OH PH और दोबारा से OH माइनस बन जाएगा, राइट? तो OH माइनस यूज हुआ, OH माइनस बन गया, दोनों ने रिएक्ट किया, तो नेट चेंज इन OH माइनस विल बी जीरो इन दिस रिएक्शन, राइट, इन दिस लास्ट स्टेप। तो अल्टीमेटली अगर तुम्हारे पास एक बेंजाल्डिहाइड है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के अंदर डाला, तो ये बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होता है, क्योंकि मीडियम बेसिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगा और बेंजाइल अल्कोहल भी बनेगा। So I'll be getting benzyl alcohol and benzoate ion. एसिड डाल दो, H3O प्लस, O माइनस पे H प्लस अटैक करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। अंडरस्टूड? तो यार एक कार्बन था जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था, +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा +3 आया और +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा -1 आया, तो कार्बन का सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो मैं इसको कौन सी रिएक्शन बोलूं? रिएक्शन बोलूं, डिस्प्रपोर्शनेशन, राइट? बोलो हाँ। एक अच्छा सेकंड लिसन दिखाओ ना गाइस, वो। एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ डन। अरे वो ठीक है, मैं कुछ और दिखा रहा था अभी। RDS क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रेशन तो shall ट्रांसफर। I say that rate of reaction for a single step reaction order is equal to molecularity? तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रेट का और एक मॉलिक्यूल बेंजाल्डिहाइड का है, तो आई हैव हाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और बेंजाल्डिहाइड का कॉन्सेंट्रेशन, रेज़ टू पावर 1 रेज़ टू पावर 1। ये बेंजाल्डिहाइड देखो, ये इंटरमीडिएट है, तुम ना कभी भी रिएक्शन का रेट इंटरमीडिएट में नहीं लिखते हो, तो जो इंटरमीडिएट है तुम्हारा एक बेंजाल्डिहाइड और एक OH माइनस के साथ बना है, तो बेंजाल्डिहाइड whole square. So what is the order of the reaction? What is the order of the reaction? 3। 3, right? लिख लिया इतना? हाँ नहीं ये लिखना। ये लिखना है? एक काम करो ना, मुझे बता देना कब इसको। हाँ
हाँ सर हो गया लिख के। गुड। लिख लिया? नहीं, एक मिनट। हम्म। लिख लिया? हाँ सर। ओके, लिख लो, उसके बाद आगे चलो। डन? यस सर। Okay, now listen. Next but not last, next thing, self Canizaro by formaldehyde. पता है क्या, अगर फॉर्मेल्डिहाइड को तुम 40% NaOH में डालोगे तो यार इसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड का? कम होता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रेट बनते हैं वो बहुत स्टेबल बनते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ रहता है, राइट? हाँ। तो होगा क्या, जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड NaOH के अंदर जाएगा वैसे ही OH माइनस इतना फास्ट रिएक्ट करेगा इससे कि ऑलमोस्ट सारा का सारा फॉर्मेल्डिहाइड विल एग्जिस्ट एज, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है कि एक और OH माइनस जो है ना यहाँ से H+ निकाल लेता है, एंड आई विल बी गेटिंग डायनियन। क्या मिलेगा मेरे को? मुझे पता है डायनियन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बहुत कम है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, तो डायनियन बनता है। गॉट इट? तो तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड है ना मेजरली डायनियन कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करता है, अनलाइक बेंजाल्डिहाइड मोनो एनियन कॉम्प्लेक्स, वैसा नहीं, डायनियन। अंडरस्टूड? अब एक बात बताओ, स्टेप 2, यार हाइड्राइड ट्रांसफर, एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा यार। पहले क्या होता था, ये O- डबल बॉन्ड बनाता था और OH- निकलता था और OH- वाज अ वीकर बेस देन H-। तो एक बार बताओ, यहाँ से अगर O2- निकल रहा है और यहाँ से H- निकल रहा है, दो ऑप्शन है, H- निकालूं कि O2- निकालूं? यार H- ज्यादा बेसिक है कि ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेसिक है? O2-। O2- ज्यादा बेसिक है, तो इजिली कौन निकलेगा, हाइड्राइड की O2-? हाइड्राइड। और अगर हाइड्राइड इजिली निकल रहा है तो shall I say that dianion
देखो O2 minus is more basic than H minus, and hence it is hence dianion will lose H minus more readily, and hence is a better hydride donor. Understood? Understood? तो होगा क्या इस रिएक्शन में, ये O माइनस, ये O माइनस और ये H, ये C डबल बॉन्ड पास आया, जैसे ही C डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पास आएगा ये डबल बॉन्ड बनाएगा और H माइनस ट्रांसफर करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस, प्लस जैसे ही H माइनस अटैक करेगा पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो CH3O माइनस। ये अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड क्या करेगा, वाटर से H प्लस निकाल लेगा, तो बन जाएगा मीथेनॉल प्लस OH माइनस। तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट है, जब फॉर्मेल्डिहाइड का सेल्फ एल्डोल हुआ, सेल्फ कार्निजारो हुआ, तो मेरे पास HC डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा और CH3OH आएगा, तो एक कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, एक अल्कोहल बनता है। एसिडिक मीडियम डालोगे बाद में तो इसको फॉर्मिक एसिड लिख दो, मीथेनॉल इसे कहते हैं। अच्छा अब एक बार बताओ, आरडीएस के अंदर डायनियन है, तो मैं चले से रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू डायनियन कॉम्प्लेक्स, dianion complex raised to power 1 into formaldehyde raised to power 1 for a single step reaction, order is equal to molecularity, एंड ये जो मॉलिक्यूल है वो दो OH माइनस से बना हुआ और एक फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के केस के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी है, फोर्थ की थर्ड? बाबा फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, बिकॉज दो OH माइनस लगे मेरे फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर। गॉट इट? बात समझ में आई? हाँ डन। हटाओ, एक मिनट। ऊपर वाला लिख लिया, हाँ ये लिख लिया सबने? नहीं ये लिखना। लिखो इसको, तो नीचे वाला लिखते हैं। लिख लिया। ग्रेट। हाँ, ये लिख लिया। वन सेकेंड, तुमने इतना लिख लिया, ये लिखा, नहीं ये लिख। ये लिख लो, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फोर्थ।
हो गया। ग्रेट। लिख लिया गाइस सबने? अरे लिख लिया सबने? वेरी गुड। नाउ लिसन गाइस, क्रॉस का नहीं जा रहा। तुमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड इसमें क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला। तो मेजरली क्या होता है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना उसका ऑक्सीडेशन होता है, और बेंजाल्डिहाइड है ना उसका रिडक्शन होता है। I'll get बेंजाइल अल्कोहल। तो यह आ जाएगा तुम्हारे पास फॉर्मीट आयन, सोडियम फॉर्मीट, और आ जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल है, तुम्हें पता है ना, स्टेप 1 के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत फास्ट है, जिससे कि वो पहले मोनो आयनियन बनता है, फिर डाई आयनियन बनता है। तो तुम्हारा मेजरली जो मॉलिक्यूल है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाई आयनियन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा है कि उसका जो हाइड्रेट है वो बहुत मुश्किल से बनता है। तो जब तक ये पहली रिएक्शन हो रही होगी इसमें, तब तक फॉर्मेल्डिहाइड आराम से डायनियन कॉम्प्लेक्स बना चुका होगा। तो मुझे एक बात बताओ, बेंजाल्डिहाइड का मोनो एनियन इज अ बेटर हाइड्राइड डोनर और डायनियन इज अ बेटर हाइड्राइड डोनर फॉर्मेल्डिहाइड का? अरे डायनियन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज लाइक बेटर हाइड्राइड डोनर, बेटर हाइड्राइड डोनर। अरे बोलोगे मोनोहाइड्राइड डायनियन। ऑफ बेंजाल्डिहाइड। देखो वेदांत ने बोला मोनोहाइड्राइड और बेंजाल्डिहाइड से बेटर हाइड्राइड डोनर, है ना? तो आंसर क्या या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए बेटा, एक जो बात मैंने बता। बोला। नहीं बोला, ये आएगा बेटे। डायनियन में यार O2 माइनस निकलेगा कि H माइनस निकलेगा, ढक्कन। H और ये माइनस अगर पाई बॉन्ड बनाएगा तो OH माइनस निकलेगा कि H माइनस निकलेगा इजिली? OH माइनस। तो बेटर हाइड्राइड डोनर कौन सा हुआ? डायनियन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो हाइड्राइड ट्रांसफर कौन करेगा? जिसका जो हाइड्राइड ट्रांसफर करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड और बेंजाल्डिहाइड का पास आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड बना है, हाइड्राइड शिफ्ट अटैक किया और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो मेरे पास HC डबल बॉन्ड O माइनस आ गया, Na प्लस प्लस, ये हाइड्रोजन लिया तो अल्कोक्साइड बन गया, जो बाद में अल्कोहल बन जाएगा। तो बेंजाइल अल्कोहल ये बनेगा, रिडक्शन होगा, और ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझा? हाँ। वेरी गुड। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है। अच्छा रुको, ये लिख लिया, जल्दी लिखो उसको, एक क्वेश्चन करवाना है उसके बाद आगे चलेंगे।
लिख लिया इतना? हाँ चलें आगे। हाँ Very good. Now listen, question is, which is better hydride donor? Which of the following will be better hydride donor? A, B, C, D. E. देखो, सबसे इजी हेल्प तो मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ये सारे डाई आयनियन है और ये मोनो आयनियन है, तो इट विल बी लास्ट हाइड्राइड डोनर। तो ऊपर वालों में से सबसे बेटर हाइड्राइड डोनर कौन सा होगा? अरेंज करो इनको हाइड्राइड डोनेशन टेंडेंसी में। कौन H- इजिली ट्रांसफर करेगा? हाइड्राइड ट्रांसफर किसका जल्दी होगा? अरे बोलो, सोचो और बताओ। सब भेजा। हाँ जी, भेजा है। भेजा है। ऐसा क्यों? पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से देखा मैंने। अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से क्यों देखा? जो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वो सबसे ज्यादा। वो क्या एक चीज तो लिख? मैंने उल्टा भेजा। उल्टा कर दो सर उसको। उल्टा कर दूं उसको? 1 मिनट फिर से भेज। हाँ भेजा। उल्टा करके भेज दिया। हाँ हम्म। दोनों गलत।
ना ना, पागल है पहला क्या? सही था पागल है क्या? तो दूसरा वाला सही है। चुप है। Hey, listen पूछना guys, से बता तो एक दो। बात बताओ, बता रहा हूँ, पहले रुक तो जा। यार एक बात बताओ, हाइड्राइड कैसे ट्रांसफर होता है? हाउ दिस H माइनस गेट ट्रांसफर है? पार्शली। हाँ पार्शली। बेटा, पास ही तो ठीक है, बट उस H माइनस ट्रांसफर होने से पहले क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। C डबल बॉन्ड बना रहा है ना? तो अगर C डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बना रहा है, तो अगर यहाँ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए ताकि ये इजिली पाई बॉन्ड बना दे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इस कार्बन पे, तो C डबल बॉन्ड इजिली बनेगा, O माइनस इजिली इलेक्ट्रॉन देगा और H माइनस इजिली ट्रांसफर होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लोग क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं कि यार H माइनस निकाल के देख लो, तो H माइनस निकाल के पॉजिटिव चार्ज डालते हैं और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। हाइड्राइड तभी निकलेगा जब ये C डबल बॉन्ड बनेगा, जब ये C डबल बॉन्ड बनेगा, ये C डबल बॉन्ड बनेगा और ये C डबल बॉन्ड बनेगा। तो अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड इजिली बन रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखना पड़ेगा ना। NO2 क्या है? माइनस आर। देखो, माइनस फर्क आर भी। फर्क फर्क यहाँ पे है, ठीक है। अब चक्कर क्या, NO2 इज माइनस आर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। बोलो हाँ या ना? और तो हाँ पैरा पोजीशन पे हाँ। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा ए पे, क्योंकि बेंजीन है। ये OCH3 क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आएगा ड्यू टू रेजोनेंस। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू प्लस H शो करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस प्लस आर। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा और यहाँ पे माइनस आर से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, राइट? या तो मुझे बताओ कहाँ पे डबल बॉन्ड इजी बनेगा? और सी पे इजीली बनेगा। यार वेदांत प्लीज शट अप यार। पॉजिटिव तो चार्ज ज्यादा क्यों होना चाहिए सर? ना, नेगेटिव। हाँ नेगेटिव सर तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाएगा यहाँ पे यार? नेगेटिव चार्ज बनाएगा ना ड्यू टू रेजोनेंस। वो कैसे रेजोनेंस कर रहा है? बेटा ये नेगेटिव चार्ज आया तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू पे यहाँ पे ना कार्बन में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा हाँ बढ़ेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये विड्रॉ करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। तो कौन सा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा? कौन सा कार्बन इजली C डबल बॉन्ड बनाएगा, H माइनस लीव करेगा? बी। उसके बाद ए। फिर बी सी ई। ये तो मोनो आनियन है। ए बच्चा बाड़ी सबको समझ में आए? अमर, हाँ सर। अब एक काम करेंगे, अमर दोबारा से लॉजिक समझाएगा। अमर लॉजिक समझा इस क्वेश्चन का। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा अमर, ये क्वेश्चन का लॉजिक समझा दोबारा से। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझा, लॉजिक समझा, जो था हमने किया अभी जिस तरीके से। तो मैं रिजॉइन कर रहा हूँ, आपका नहीं वॉइस नहीं, रिजॉइन मत कर, एक काम कर। हेलो। मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। हर्ष, ओ हर्ष, हर्ष बेटा लॉजिक समझा इस क्वेश्चन का, जब तक उसको आने दो। हाँ सर। हम्म ओ माइनस है तो फिर ओ माइनस, तो मतलब बेंजीन में NO2 है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेंजीन हाँ की। हाँ तो पैरा पोजीशन पे उधर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ज्यादा हाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो कार्बन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसलिए वो
ऑक्सीजन के ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज आसानी से वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा और H माइनस लीव कर सकता है आसानी से। C डबल बॉन्ड O बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड O बन रहा है, H माइनस लीव करेगा, हाँ राइट? डन। चलो गाइस, टेक केयर। अबे सर्च कहाँ से होगा इसमें? सो ये क्या ऊपर है बच्चों शायद ने सर्च वाला। सर मैंने आपको जूम चैट पे कुछ भेजा, हाँ देखा मैंने। आपने उसके बाद भी भेजा मुझे। ओके, हर्ष तो है क्या टेलीग्राम पे? नहीं नहीं, हर्ष नहीं तो है क्या टेलीग्राम पे? ये हर्ष नहीं HK तेरा है क्या? वो HS होगी ना। हाँ हाँ, हर्ष हर्षा KH नहीं, हर्षल नहीं, हर्षद नहीं। हाँ, ठीक है यार, कोई नहीं। वेदांत और अमर गया ना। वेदांत हो गया, झिंगुर हो गया, ठीक है। और कोई? हाँ, चलो जाओ, तुम मस्ती करो। वेदांत तेरे को बोल रहा था। हाँ हाँ सभी इच्छा। हाँ, वैसे थैंक यू, गुड नाइट। बाय, बाय सर, थैंक यू। गुड नाइट।